फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्लासिकल कंसेप्ट डिस्कस किया था. Now in this lecture we are going to discuss about the oxidizing agent or oxidant and reducing agent and reductant. As well as we are going to discuss about the electronic concept of oxidation and reduction. So let's see. First, that is oxidizing agent or oxidant. What is oxidizing agent or oxidant? Any particular species which causes oxidation of other species and itself get reduced is known as oxidant. कोई भी ऐसी species, ठीक है, इसकी definition देख लेते हैं. ठीक है, definition क्या है? कोई भी ऐसी species जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, वो क्या कहलाती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एनी स्पीशीज which causes oxidation of other species and itself undergo reduction is known as oxidant or oxidizing agent. ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं. एक रिएक्शन का एग्जांपल लेती हूं मैं. 4HCl एक्वस प्लस यहाँ पे लिया मैंने MnO2 सॉलिड. दोनों में रिएक्शन हुआ. 4HCl रिएक्ट विद MnO2 gives MnCl2 एक्वस plus 2H2O liquid plus Cl2 gaseous. This is a reaction. You can see in this particular reaction, this MnO2, okay, it behaves like oxidant. ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडेंट की तरह. कैसे? इसने जो 4HCl में से 2 क्लोरीन एटम है, ठीक है, उनको ऑक्सीडाइज कर दिया, उनमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया. सो MnO2 इज ऑक्सीडेंट. नाउ सेकंड वन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट. ओके, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट. व्हाट इज reducing agent or reductant? Simple, just opposite to oxidant. That means any species which causes reduction of other species and itself undergo oxidation is known as reductant or reducing agent. ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, वो क्या कहलाएगी? रिड्यूसिंग एजेंट. फॉर एग्जाम्पल, another example I am taking over here. 2HgCl2 aqueous reacts with SnCl2 aqueous gives Hg2Cl2 aqueous plus SnCl4 aqueous. Here this SnCl2, it behaves like reductant because it reduces mercury by addition one more mercury electropositive atom. Okay, so SnCl2 is a reductant which reduces mercury, forms mercurous chloride and itself get oxidized due to addition of 2 more chlorine electronegative atoms. है ना? यहाँ
यहाँ पे SnCl2 क्या है, रिडक्टेंट है, क्योंकि उसने किसको रिड्यूस किया, मर्क्यूरी क्लोराइड को रिड्यूस किया मर्क्यूरस क्लोराइड में। मर्क्यूरी में एक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मर्क्यूरी ऐड हो गया और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम अटैच हो गए। ठीक है, इसको और बहुत सारे एग्जाम्पल से हम बाद में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लेट्स सी। Now next is electronic concept of oxidation and reduction. Okay, so according to electronic concept, what is oxidation? First term, that is oxidation. Okay, according to electronic concept, the species which loses electrons is going to oxidize. Okay, as I told that oxidation and reduction half reaction are complementary to each other. Okay, so whenever oxidation is taking place, simultaneously reduction half reaction is also taking place. So you can see the half reaction which involves loss of electron is known as oxidation half reaction. Clear? This is the definition of oxidation. Okay, half reaction which involves loss of electron is known as oxidation half reaction. Similarly, reduction half reaction, if you want to see, then what is reduction half reaction? Just opposite to it. So half reaction which involves gain of electron is known as reduction half reaction. Clear? This is a definition of oxidation and reduction. Okay, then we will see these two definition. Okay, how is it true with the help of some example. Okay, let's see the examples. Now let's see the first example of reaction by which we are going to discuss the electronic concept of oxidation and reduction. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमको देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, हाफ रिएक्शंस, है ना। इसकी हाफ रिएक्शंस को हमको डिस्कस करना पड़ेगा, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम, ओके, सॉलिड loses 2 electron and forms Mg2 plus. Okay, solid plus 2 electron. मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और Mg2 प्लस आयन बनाया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ. अब यहाँ कितने 2 है Mg, so we will multiply this reaction by 2, so how many electron, 4 electron will be lost. Then रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन which is going to be reduced oxygen, so O2, okay, each oxygen atom gain 2 electron. 2 oxygen atoms are there, so they will get 4 electron total, है ना. एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्साइड आयन बनाने के लिए. 2 ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे. यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 2O2 -
इलेक्ट्रॉन इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड विल बी कैंसल आउट। तो यहाँ क्या बनेगा 2mg सॉलिड प्लस O2 गैसियस, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों कंबाइंड होके 2MgO सॉलिड, है ना। ये 2Mg प्लस आयन है, Mg2 प्लस आयन और O2 माइनस आयन आपस में कंबाइंड होके क्या बना देंगे MgO, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, खुद ऑक्सीडाइज होके मैग्नीशियम 2 प्लस आयन बनाया, ठीक है। ऑक्सीजन has gained electron and converted into oxide ion, means oxygen undergo reduction. Now according to electronic concept also we can explain reducing agent or reductant and oxidizing agent and or oxidant. See, in this reaction, as I told, oxidant is the species which oxidizes the and itself get reduced. So here oxygen, okay, this oxygen is what? Oxidant, okay, it oxidizes the magnesium, ठीक है। तो ऑक्सीडेंट क्या हुआ, ऑक्सीडेंट इज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, एनी पर्टिकुलर स्पीशीज विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजेस अदर and itself undergo reduction is known as oxidant, while magnesium is what? Reductant. Magnesium was reductant, okay. What is, according to electronic concept, reductant is donor of electron, donor of electron. See, magnesium donates electron to oxygen atom, itself get oxidized and reduces oxygen, so that's why it is reductant. So जो मॉडर्न कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है उसके हिसाब से भी ऑक्सीडेंट क्या है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। रिडक्टेंट क्या है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ मैग्नीशियम खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए मैग्नीशियम क्या है, रिडक्टेंट है। ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, इसलिए वो क्या है, ऑक्सीडेंट। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब मैं सारे एग्जांपल्स वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कौन सा है, लेट्स सी 2Na solid plus Cl2 gaseous gives 2NaCl, 2NaCl solid, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइज कौन सा स्पीशीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है, 2Na solid loses 2 electron and forms 2Na plus, है ना। Each sodium atom loses 1 electron and form Na plus ion. 2 Na atoms are there, that's why 2 electrons are lost. So it is oxidation. And reduction. In reduction what happens? Cl2 gaseous gain 2 electron. Each chlorine atom will gain 1 electron. 2 are there, so 2 electron and forms 2Cl minus gaseous. Okay, here it will be solid, ठीक है। Now overall reaction क्या हुआ, overall reaction 2Na will be cancelled, here 2Na solid plus Cl2 gaseous gives, either you can write in ionic state which afterwards combine together and form 2NaCl, or directly you can write over here, है ना। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2Na plus Cl 2Cl minus, ओके।
ये दोनों भी आपस में कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, 2NaCl सॉलिड. Okay, now let's see. Sodium is oxidized, okay, by loss of 2 electron and reduces chlorine. So sodium in this reaction is what? Reductant, because it reduces chlorine by donating the electron and itself get oxidized, है ना. उसने क्लोरीन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिड्यूस किया और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज. तो इलेक्ट्रॉन का डोनर है ये, इसलिए ये हो गया रिडक्टेंट. और क्लोरीन क्या है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. उसने क्या किया, सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया, उसको ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया. सो क्लोरीन इज ऑक्सीडेंट. क्लियर. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. ठीक है, समझ में आया, बहुत ही इजी है. दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, सी 2Na सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड गिव्स Na2S सॉलिड. अब यहाँ पे देखिए सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पे. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सेम रिएक्शन सोडियम का. 2Na सॉलिड loses 2 electron and form 2Na plus. ओके, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन. रिडक्शन किसका होगा, सल्फर का. क्या हो रहा है यहाँ पे, सल्फर सॉलिड. ठीक है, एक सल्फर एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है किससे, सोडियम से, और यहाँ बना रहा है S2 माइनस. ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय सोडियम, 2 इलेक्ट्रॉन गेन बाय सल्फर. तो यहाँ ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, 2Na सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड गिव्स 2Na प्लस एंड S माइनस. इसको कंबाइंडली लिखोगे तो क्या बन जाएगा, Na2S. अब यहाँ भी देखिए सोडियम loses its electron, it is electron donor and reduces sulfur and itself get oxidized. So sodium again here reductant. सोडियम क्या है हमारा, reductant है. और जो हमारा नेक्स्ट है सल्फर, ये क्या है, ऑक्सीडेंट है, because it is acceptor of electron. It accepts electron from sodium, oxidizes sodium and itself get reduced. ठीक है, जितने एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उतना क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. H2S gaseous reacts with Cl2 gaseous gives 2HCl gaseous plus sulfur solid. ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए हाफ रिएक्शन लिखते हैं पहले. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सल्फर का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ पे H2S में, ठीक है, जो सल्फर है वो S2 माइनस आयन की स्टेट में है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 माइनस. तो यहाँ क्या होगा, 2H प्लस आयन बनेंगे. ठीक है, प्लस सल्फर बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे. ठीक है, सल्फर कैसा रहेगा, सॉलिड स्टेट में, ये गैसियस है. ठीक है, सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन. देन रिडक्शन. रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन होगा क्लोरीन का. 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दिए हैं, 2 क्लोरीन एटम गैसियस will gain these 2 electron and convert into 2Cl minus gaseous. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2Cl donated by sulfur gained by chlorine will be cancelled. ठीक है, overall reaction will be H2S gaseous plus Cl2 gaseous gives 2HCl gaseous plus sulfur solid. ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, सल्फर, है ना. सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 2 माइनस, यहाँ पे हो गई 0, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. तो सल्फर क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्टेंट.
सल्फर क्या हो गया, रिडक्टेंट, एंड क्लोरीन क्या हो गया, इट इज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजेस सल्फर एंड सेल गेट रिड्यूस, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेंट। ठीक है, इसने सल्फर को ऑक्सीडाइज किया। क्लियर है? आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जितने ज्यादा एग्जांपल आपको हम डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एक नेक्स्ट रिएक्शन है 3Fe3O4 सॉलिड प्लस 8Al सॉलिड गिव्स 9Fe प्लस Al2O3, ठीक है, 4Al2O3, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए ये जो Fe3O4 है, दिस Fe3O4 इज अ कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन, एक्चुअली it is Fe3O4 can be written as Fe2O3 dot FeO, ठीक है, it is a combination of ferric oxide and ferrous oxide. In ferric oxide the oxidation state of iron is +3 and in ferrous oxide oxidation state of iron is +2. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम बाद में और डिस्कस करेंगे, एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि, ठीक है। तो अब मैं ये Fe3O4 जो है उसको इसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूंगी Fe2O3 डॉट FeO, ठीक है। नाउ लेट्स सी द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे और किसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज टेकन प्लेस ऑफ दिस एल्यूमिनियम, ओके, वन एल्यूमिनियम एटम, okay, loses 3 electron and form Al3 plus ion. Now how many aluminiums are there? 8. So 8Al will form 8Al3 plus ion. 8 3s are 24 by loss of overall 24 electron, है ना। 8Al जो है वो 8Al3 plus ion बनाएगा और टोटल 24 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है आयरन का एक्चुअली प्रेजेंट इन Fe3O4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Fe3O4 को मैं लिख रही हूँ Fe2O3 डॉट FeO। अब देखिए यहाँ पे 2 Fe3 प्लस आयन है और एक Fe2 प्लस आयन है, 3 2 6 प्लस 2 8, टोटल फेरिक और फेरस आयन मिलके 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, ऐसे 3 हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं 3, यानी 3 2 6 आपके पास क्या है Fe3 प्लस आयन है एंड 3 क्या है आपके पास Fe2 प्लस आयन। 3 प्लस आयन को रिड्यूस करने के लिए 6 3 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, और 3 2 6 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए फेरस आयन को रिड्यूस करने के लिए। तो टोटल कितने हो गए 18 प्लस 6 24 इलेक्ट्रॉन। सो हियर 24 इलेक्ट्रॉन गेन बाय मैग्नेटाइट और Fe3O4, क्लियर हो गया। और यहाँ क्या बनेगा फिर 9Fe, टोटल कितने हो गए 9Fe, 3 2 6 प्लस 3 9Fe बनेंगे सॉलिड स्टेट में। और कितने ऑक्साइड आयन बनेंगे, ये हो गए 3 3 9 प्लस 3 12, यहाँ कितने बनेंगे 12 ऑक्साइड आयन बनेंगे, ठीक है, 12 ऑक्साइड आयन बनेंगे। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा 24 इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसल्ड, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा 8Al सॉलिड प्लस 3 Fe2O3 डॉट FeO, ठीक है, गिव्स क्या बनेगा यहाँ पे Al3 प्लस आयन ऑक्साइड आयन के साथ कंबाइंड होंगे, है ना। यहाँ पे कितने ऑक्साइड आयन बने 3 3 9 प्लस 3 12, और यहाँ पे कितने हैं Al 8 है, तो यहाँ बनेगा Al2O3 4 3 12, ये हो गए 4 ऑक्साइड आयन और 8 12 ऑक्साइड आयन एंड 8 एल्यूमिनियम प्लस यहाँ पे बन गए 9
ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का डोनर है, आयरन को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पे, रिडक्टेंट। एल्यूमिनियम क्या है, रिडक्टेंट। और यहाँ पे ये जो आयन है ये क्या कर रहा है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एल्यूमिनियम को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, सो इट विल बी ऑक्सीडेंट। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमने जो पहले दो रिएक्शन डिस्कस की थी, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, उसमें कौन ऑक्सीडेंट है कौन रिडक्टेंट है। लेट्स सी, फर्स्ट रिएक्शन हमने कौन सी देखी थी, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी थी HCl और MnO2 वाली, उसको भी देख लेते हैं। 4HCl एक्वस प्लस MnO2 सॉलिड, ठीक है, गिव्स MnCl2 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस Cl2 गैसियस। ठीक है, अब इसमें भी पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्लोरीन का, प्रेजेंट इन HCl, तो वो रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, 4HCl एक्वस, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बना रहा है 4H प्लस आयन, यहाँ पे भी H प्लस आयन था, यहाँ पे भी H प्लस आयन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ बन रहा है 2Cl माइनस आयन, यानी 2Cl माइनस आयन एज इट इज है, प्लस यहाँ क्या बन रहा है Cl2, यानी 2Cl माइनस आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, और खुद क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। Each chlorine atom is going to lose 1 electron, so 2 chlorine atom will lose 2 electrons, so it is the oxidation of chlorine. And reduction, next is reduction. reduction किसका हो रहा है, MnO2 का, ठीक है, MnO2 में भी मैग्नीज का, ठीक है, अब MnO2 solid gains these 2 electron, यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, it forms, ठीक है, Mn2 plus aqueous and 2O2 minus ion aqueous, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन Mn ने गेन किए। ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, 4HCl aqueous प्लस MnO2 solid gives, अब देखो 4H प्लस आयन है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे O2 माइनस आयन है, चाहे तो आप अलग अलग लिख लो, पहले 4H प्लस आयन एक्वस, ठीक है, प्लस 2Cl माइनस एक्वस प्लस Mn2 प्लस एक्वस प्लस O2 माइनस एक्वस। Now these two will combine together and these two will combine together. So what will be the product? Ultimate product will form, here I am writing MnCl2 aqueous, okay, plus, और Cl2 मैंने लिखा ही नहीं था यहाँ पे, this Cl2 also, plus यहाँ पे क्या बनेगा 2H2O लिक्विड प्लस Cl2 गैसियस, ठीक है। अब इसमें देखो Cl ये क्या है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और मैग्नीज को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ना, यानी ये क्या हो गया, रिडक्टेंट, ये क्या हो गया हमारा, रिडक्टेंट, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मैग्नीज को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये हो गया रिडक्टेंट। और यहाँ जो Mn है ये क्या कर रहा है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये किसको कर रहा है, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेंट। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट और रिएक्शन एक थी, वो भी देख लेते हैं, लास्ट रिएक्शन,
HgCl2 aqueous plus SnCl2 aqueous gives Hg2Cl2 aqueous plus SnCl4 aqueous. Okay, now look this. Here also we will write half reaction, oxidation half reaction. Okay, which is going to be oxidized? टीन is going to be oxidized. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से भी देख लेते हैं. SnCl2 जो है, ठीक है, इस SnCl2 में क्लोरीन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2. ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ठीक है, इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा? Sn4+, ठीक है, +2Cl- बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन देख लेते हैं. रिडक्शन किसका हो रहा है? HgCl2 का. ठीक है, तो यहाँ HgCl2, ठीक है, 2 है, यानी हर एक मर्क्यूरी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो यहाँ ले लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ क्या बन जाएगा? 2Hg+. यहाँ पे क्या था? Hg2+ था, यहाँ क्या बन गया? 1+. ठीक है, प्लस 2Cl-. ठीक है, 2 2 जा 4, सो 4Cl-. कितने हो गए? 4Cl-. So now mercury in mercury chloride is reduced to mercurous ion and stannous ion in stannous chloride is oxidized to stannic ion, है ना. तो अब यहाँ पे क्या होगा? ओवरऑल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन Hg ने लिए और 3 ने दिए, कैंसिल हो गया. सो हियर नेट रिएक्शन विल बी SnCl2 aqueous plus 2HgCl2 aqueous gives. अब यहाँ पहले आयन लिख लेते हैं. Sn4+, ठीक है, प्लस 4Cl- प्लस 2Hg+ प्लस 2Cl-. अब देखो ये आपस में मिलके क्या बना देंगे? Hg2Cl2 और ये आपस में मिलके क्या बना देंगे? SnCl4. तो क्या बन गया यहाँ पे? SnCl4 aqueous प्लस Hg2Cl2 aqueous. Okay, now here तीन क्या है? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, which donate electron to mercury and reduces it and itself get oxidized, so it is reductant. ये क्या हो गया हमारा? reductant. And mercury, it is acceptor of electron. It is acceptor of electron. ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और तीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. ठीक है, तो यहाँ हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए रिगार्डिंग ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए.